महापात्रा हमारे साथ में हैं। मैं अपने विभाग के नियामक डॉक्टर राजीव भाई पटेल साहब से निवेदन करता हूं कि स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर राजीव भाई पटेल। आभार लोकेशભાઈ। ભાઈનભાઈ આપણો ડિપાર્ટમેન્ટનો કેમેરો ચાલુ કરો એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ છે દેખાય, નહીતર આપણે 4 જણા દેખાઈએ છે। ઓકે સર। હા, આદરણીય અરુણભાઈ, પ્રોફેસર નીરજભાઈ, સોરી, નીરજભાઈના નેતૃત્વમાં ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ વિદ્યાપીઠમાં આ સરસ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે। ઘણા બધા કાર્યક્રમો કર્યા, એના અંતર્ગત આજનો કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓને સતત એ સમજ આપતા રહીએ છીએ કે જીવનમાં ફિટ રહેવું કેટલું જરૂરી છે। ગુજરાતીમાં એક કહેવત પણ છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નિરા। જ્યાં સુધી શારીરિક તંદુરસ્તી ના હોય ત્યાં સુધી તમે માનસિક તંદુરસ્તી પણ નહીં કેળવી શકો, અને માનસિક અને શારીરિક તંદુરસ્તી નહીં હોય તો આપણા લક્ષ્ય સુધી આપણે નહીં જઈ શકીએ। ગાંધીના જે તંદુરસ્ત સમાજની કલ્પના હતી, ગ્રામ સ્વરાજની કલ્પના હતી, ત્યાં પહોંચવા માટે તંદુરસ્ત તન અને તંદુરસ્ત મન બંનેની ખૂબ જ જરૂરી છે। ગાંધીએ પણ એમની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં આ તંદુરસ્તી અને વ્યાયામનું મહત્વ સમજાવ્યું છે। વિદ્યાર્થીઓએ સવારમાં અને દિવસ દરમિયાન મેદાન ઉપર જવું એટલું જ જરૂરી છે જેટલું ક્લાસરૂમમાં ભણવું। વિદ્યાર્થી ફિટ હશે તો એ જે લક્ષ્યાંકો સુધી પહોંચવું છે, જે ડુંગરો સર કરવા છે, ત્યાં સરળતાથી પહોંચી શકશે। વિદ્યાપીઠમાં તો આપણા માટે એ અનુકૂળતા છે કે દરેક પરિસર ઉપર બહુ મોટા ગ્રાઉન્ડ છે। આપણી પાસે બહુ મોટી એક ફેકલ્ટી છે વ્યાયામની, અને સતત વર્ષ દરમિયાન એ વિદ્યાપીઠના દરેક વિભાગના વિદ્યાર્થીઓને સતત માર્ગદર્શન આપતા રહે છે, અને એવા કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરતા રહે છે કે વિદ્યાર્થીઓ સતત આ બાબતે જાગૃત રહે। મને આશા છે કે આવા બધા પ્રોગ્રામથી વિદ્યાર્થીઓ એમની ફિટનેસ વિશે જાગૃત થશે। નીરજભાઈ, એક આનંદના સમાચાર એ પણ છે કે રાંધેજામાં એકમાત્ર એવી જગ્યા હતી જ્યાં જીમ નહોતું, એ આવતા 10 દિવસમાં અમે એક સાદું, તમારે જેટલું અદ્યતન તો નહીં પણ સાદા જીમનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એટલે આવા બધા સાધનો સવલતો વિદ્યાપીઠ સતત પૂરી પાડતી રહે છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને પણ વિદ્યાર્થીઓએ જાગૃત થઈ અને પોતાની તંદુરસ્તી માટે, પોતાના ફિટનેસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે। વિદ્યાપીઠના સેવકો સતત વિદ્યાર્થીઓની આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ માટે હંમેશા ઊભા હોય છે, જાગૃત પણ હોય છે, અને સતત મદદ કરતા પણ હોય છે। મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી વ્યાયામના જે શિક્ષકો છે, ખાસ કરી નીરજભાઈને, એ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ખર્ચે પણ આવા બધા પ્રોગ્રામમાં બહાર મોકલતા હોય છે। એટલે શિક્ષકોની, સેવકોની આટલી સક્રિયતાનો લાભ લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ફિટનેસ માટે સતત જાગૃત રહે એવી વિનંતી પણ છે। અરુણભાઈ સતત યુવાનો માટેના આવા પ્રોગ્રામો કરતા રહેતા હોય છે। રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના અને વિદ્યાર્થી રોજગાર પરામર્શ અંતર્ગત પણ અરુણભાઈ સતત ચિંતિત હોય છે કે યુવાનોને કેવી રીતે સતત લાભ અપાવી શકીએ। જુદા જુદા કાર્યક્રમમાં મોકલી એમની મનની તંદુરસ્તી માટે, લોકલ જુદી જુદી ઇવેન્ટ ઊભી કરી અને એમની તનની તંદુરસ્તી માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે। એના માટે અમે આનંદની લાગણી પણ અનુભવીએ છીએ, અને વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કે સતત આવા બધા પ્રોગ્રામમાં જોડાઈ અને પોતાના વિકાસ માટેની તકો ઝડપી લે। ફરીથી સર્વે મિત્રોનો આભાર। અસ્તુ। धन्यवाद राजीव भाई, आप स्वागत उद्बोधन के लिए। बहुत सारी बातें आपने जो इस समय कही अपने उद्बोधन में, संभवतः ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए गौरव की बात है। हमारे बीच में हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक श्री डॉक्टर अरुण भाई गांधी हमारे साथ में है। मैं अरुण भाई गांधी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रसंगोचित विद्यार्थियों से बात करें, क्योंकि आपको ये और बता दूं सर, अभी जो हमारे पास विद्यार्थी हैं, नए आए हैं, आप राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में भी लेकर के भी बात कर सकते हैं सर, क्योंकि उन्हें कुछ नई दृष्टिकोण उन्हें मिलेगा आपके साथ में बैठने से। आदरणीय अरुण भाई गांधी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू वेरी मच लोकेश भाई। अवाज आवे छे मारो बरोबर? आप बराबर आवे छे सर। ओके। माननीय नियामक श्री डॉक्टर राजीव भाई, डॉक्टर लोकेश भाई, डॉक्टर हसमुख भाई, राष्ट्रीय एवॉर्ड विजेता
અને મારા સાથી ડૉક્ટર નીરજભાઈ, જે કોર કમિટીના રાજ્યની સભ્ય પણ છે, અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું કામ સતત આપણી સાથે લઈને આપણે ફરીએ છીએ. સાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અધ્યાપક મિત્રો, સૌપ્રથમ તો આજે આ કાર્યક્રમ યોજવા માટે આપ સૌને અભિનંદન. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો કે હવે કોરોનાની ત્રીજી લહેરના પડધમ વાગી રહ્યા છે. પહેલી લહેરમાં અને બીજી લહેરમાં એના શું પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે આપણે બધાએ જાણ્યું છે. અને એક વાત બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે જે વ્યક્તિના શરીરમાં રેઝિસ્ટન્સ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી છે એને કોરોનાએ બહુ ઝાઝી અસર કરી છે. એના જુદા જુદા અંગોને પણ ડેમેજ કર્યા છે. રાજુભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે આપણી પહેલી ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા. માણસ સુખી ક્યારે કહી શકાય એ વિશે આપણે સૌએ આત્મચિંતન કરવાની જરૂરિયાત છે. ઘણા લોકો એમ સમજે કે મારી પાસે બંગલો, ગાડી, મોટર, ચાકર બધું હોય તો હું સુખી છું. પણ એ બધું હશે પણ શરીર કામ કરતું નહીં હોય તો માણસ કશું જ કરી શકવાનો નથી. એ માત્ર જોઈને બેસી જ રહેવાનો પ્રશ્ન એની પાસે આવે છે. અને આજે આનંદના સમાચાર રાજુભાઈ આપી દીધા કે ભાઈ રાંધેજા પરિસરમાં પણ જીમ શરૂ થાય છે. એટલે આ આપણે એમ એટલા માટે વિચારવું જોઈએ કે આપણા બધા જ પરિસરોમાં આપણા શરીરને પૂરતો વ્યાયામ આપી શકીએ એવા સાધનો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. માત્ર સવાલ છે આપણે એનો ઉપયોગ કેટલો કરીએ છીએ તે. સામે પ્રવાહે આજે ટેકનોલોજી દિન પ્રતિદિન આગળ વધે છે, આપણને જોડેલા રાખે છે, આપણને વ્યાયામ કરવા દેતા નથી. પરિણામે આપણે બધા જ જે બેઠાડું જીવન જીવવા ટેવાઈ જઈએ છીએ. કોઈ પણ દેશ હોય એનો વિકાસ એની યુવા પેઢી ઉપર અવલંબિત છે. યુવા પેઢીની તંદુરસ્તી જો સારી હશે તો એ દેશ, એ સમાજ ખૂબ સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકશે. અને આપણે બધાએ જોયું છે કે અત્યારે વ્યક્તિની પોતાની હર્ડ ઇમ્યુનિટી વધે એ માટેના જુદા જુદા પ્રયાસ, જુદી જુદી દવાઓ આપણે બધા લઈએ છીએ. પણ એના બદલે આપણે માત્ર ને માત્ર આપણી જીવનશૈલી જો સારી રીતે અપનાવીએ, કારણ કે ગાંધીએ જે જીવનશૈલી આપી છે, ત્યાર પછી મોરારજીભાઈ એ પણ આખી જીવનશૈલી આપી છે. આ મહાપુરુષોની આપણે જીવનશૈલી જો તપાસીએ અને એમાંથી કંઈક જો નવું શીખીએ તો મને લાગે છે આપણી તંદુરસ્તીમાં ક્યાંય ખામી ઉણપ આવવાની નથી. એટલે મિત્ર, કહેવાનો મતલબ એટલો છે, કશું જ ન થાય તો માત્ર રોજના 10,000 ડગલા ચાલવાનું રાખો. જો ચાલશો તો તમારું આયુષ્ય, તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહેશે. અને નહીં ચાલો તો આપણે ક્યાંય ચાલ્યા જઈશું એની ક્યાંય આપણને ખબર નહીં પડે. બીજું, આજે 2 દિવસ પહેલા આખા મેડિકલ સાયન્સના જે રિપોર્ટ્સ આવ્યા એમાં કહ્યું કે આજે યુવાનોમાં ડાયાબિટીકનું પ્રમાણ 20% જેટલું વધ્યું છે. અને એની સાથે સાથે ઓબેસિટીનું પ્રમાણ પણ 16% જેટલું વધ્યું. આ બંને જ બીમારી બહુ જ વ્યક્તિને પાયમાલ કરે એવી છે. અને આપણા પરિવારમાં, આપણા કુટુંબમાં, આપણા અડોશ પડોશમાં આપણે જોયું હશે કે જે વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ છે, ઓબેસિટી પીડાવે છે, એ વ્યક્તિ કઈ જ પોતાના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ કરી શકતો નથી. કારણ આજે હું ઘણી વખત યુવાનોને મળું છું, જોઉં છું, ત્યારે મને એમ થાય કે જે ઉંમરે વ્યક્તિએ ચાલવાનું છે, દોડવાનું છે, ગતિ કરવાની છે, એ ઉંમરે વ્યક્તિ બાઇસિકલ લઈને, બાઇક લઈને, એક્ટિવા લઈને, સ્કૂટર લઈને, ગાડી લઈને બહાર જાય છે, ફરે છે. દૂર જવાનું હોય તો બરોબર છે, પણ ઘરથી ક્યાંક કશુંક શોપિંગ કરવા જવાનું હોય, નજીકમાં પાનના ગલ્લે જવાનું હોય, ક્યાંક મિત્ર મળવા જવાનું હોય, તો બધી જ જગ્યાએ આપણે ચાલવાનું છોડી દીધું છે. અને એના પ્રતાપે આપણે આ બધા જ
રોગોના શિકાર બન્યા છે. એટલે આપણે એમાંથી મુક્ત થવું હોય, આપણું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવું હોય, તો મને લાગે છે આપણે સૌએ સતત ચાલતા રહેવું પડશે. રોજના 10,000 ડગલા જો ચાલીશું તો આપણું જીવન સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને આપણે સમાજની અંદર, કુટુંબની અંદર, પરિવારની અંદર, એના વિકાસની અંદર આપણે મદદરૂપ થઈ શકીશું. આજના કાર્યક્રમ માટેની આપ સૌને શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ. વિદ્યાપીઠ એનું બધું જ દ્રવ્ય આવા કાર્ય માટે, યુવાનોના વિકાસ માટે સતત ખર્ચે છે. એ આપણા સૌના માટે આનંદની બાબત છે. આપણે સૌ એનો જેટલો લાભ લઈએ અને આપણે કોકના રોલ મોડેલ બનીએ એવી અભ્યર્થના સાથે વિનવું છું. આયોજકોનો હું આભાર માનું છું કે ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું છે અને આપણી સાથે એક રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતા અને આપણા સૌના રોલ મોડેલ એવા ડૉક્ટર નીરજભાઈ પણ આપણી સાથે છે. જુદી જુદી યુનિવર્સિટી પણ એમનું માર્ગદર્શન મેળવે છે. તો આ તો આપણા પરિવારના છે, તો આપણે એમના થકી વધારે मार्गदर्शन मेळवीए. फरी आप सौनो आभार, नमस्कार, धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई. आपकी जो उपस्थिति है वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी होती है बता नहीं सकते. आपने बहुत अच्छी जो बातें की, 400 तो सारो नहीं तो क्या चाले जैसो ये खबर नहीं पड़े. बहुत कोविड के चलते जो आपने बात की है कि लोग किस तरह से फिट रहे हैं, आपने लोगों को टकोर कर दी है कि हाँ, हमें अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, रोगों से मुक्त रहना है, कोविड में अपने आप को टिकाए रखना है, तो फिट तो रहना ही पड़ेगा. आपके इस वक्तव्य के लिए खूब खूब आभार. अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नीरज भाई सिलावट से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो हमारा मुख्य विषय है फिट इंडिया मुहिम, युवा शक्ति के निर्माण की आधारशिला, इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान करें. भाई श्री नीरज भाई. नीरज भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कंप्लीट. मेरी भी आ रही है ना? बिल्कुल आ रही नीरज भाई. यस, आपका स्वागत है नीरज भाई, आप शुरू करिए. ठीक है. थैंक यू. नमस्कार. गुजरात विद्यापीठ के रांधेजा परिसर के द्वारा आयोजित फिट इंडिया का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नियामक श्री डॉक्टर राजीव भाई पटेल सर हैं. मैं उनके यहाँ पे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, बात करने की. और स्पेशली मैं कह दूं कि मुझे आज तक का अनुभव है कि जब भी मैंने किसी कॉल पे राजीव भाई से कोई बात की है तो मुझे उसमें नो शब्द नहीं मिला. वो चाहे अपने प्रोफेशन की बात हो या कोई मेरी दूसरी रिक्वेस्ट हो कि यार सर वहां जरा सा देख लेना, तो एक उनका जो कोऑपरेटिव नेचर है, स्वभाव है, उसके लिए मैं हमेशा उनको याद करता हूँ कि राजीव भाई के मुख से कभी भी नो नहीं निकला. किसी भी काम के लिए आपने बोला हो तो वो यस, बिल्कुल रेडी, तैयार, और आपको हमेशा सहकार देने के लिए. बड़े जो पद पे होते हैं संयोजक, डीन, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी जगह पे कोऑपरेट करना, क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं. तो उनका यहाँ पे बहुत धन्यवाद है. मेरे गुरु हैं एक तरीके से, जिन्होंने खरेखर ये एनएसएस सिखाया है मुझे, और मैं तो शायद एनएसएस जीता हूं लाइफ में. मुझे ऐसा लगता है कि इसे जीना चाहिए, पर ऐसा कोई फेर नहीं है. एनएसएस और गांधी की विद्यापीठ में कोई अंतर नहीं है. जब हम गांधी को जीते हैं वही एनएसएस है, क्योंकि गांधी को 100 साल में याद किया और लगा देश को कि नहीं, गांधी ही चाहिए, गांधी का ही सिस्टम चाहिए, तो एक नया रूप में एनएसएस आ गया. उनके 100 साल की शताब्दी का वर्ष था और उस साल एनएसएस शुरू किया गया. और मैं तो एक बाहर की यूनिवर्सिटी का हूं, तो बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, बहुत जल्दी जान सकता हूं कि सिस्टम में कोई अंतर नहीं. मैं जो यहाँ आया नौकरी करने के लिए, गांधी के सिस्टम में काम करता था, वो सारी चीजें होती थी. फिर कुछ समय बाद एनएसएस से जुड़ गया तो मुझे लगा सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा है. जैसा गांधी सोचते थे वैसे ही एनएसएस सोचता है. एनएसएस भी व्यक्ति के, बच्चे का, विद्यार्थी का ऑल डेवलपमेंट की बात करता है, तो वही चीज एनएसएस करता है. तो मगर मेरा एनएसएस का गुरु, मेरे एनएसएस के जो गुरु है, जिन्होंने एनएसएस के बारे में मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शित किया, मुझे कोई भी अवार्ड मिला हो, मेरा वो अवार्ड उनके चरणों में है. क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इस कॉम्पिटिटिव समय में, जहां हम एक दूसरे की स्पर्धा में आगे बिल्कुल निकलने नहीं देना चाहते, बड़े ही निर्दोष तरीके से उन्होंने हमेशा एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें काम करने का.
और मुझे तो ऐसा लगा कि वो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कहीं मैं कुछ अचीव कर पाया मेरी विद्यापीठ के लिए, तो उसमें एक बड़ा योगदान जो है वो एनएसएस के क्षेत्र में माननीय और मेरे लिए बहुत आदरणीय अरुण भाई गांधी सर का है। तो सर आपका बहुत धन्यवाद है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। पुनः मेरे भाई जो है दोनों इस समय जुड़े हुए हैं और एक्टिव रहते हैं हमेशा। लोकेश भाई भी एनएसएस में हमेशा एक्टिव रहते हैं, बच्चों से बहुत तरह की एक्टिविटी की अपेक्षा रखते हैं, उनको करवाते रहते हैं। बड़ा टिपिकल है बच्चों, तुम खुद जानते हो कि एकेडमिक नौकरी करना, पढ़ाना, 16 घंटे हमें भी पढ़ाना है, प्रोफेसर हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, 12, 14, 16 हम लोगों के लिए क्लासिफाइड टाइम टेबल है, हमें उतना तो पूरा करना ही है। उसके अलावा ये एक अलग चीज है जिसके लिए समय निकालना। हसमुख भाई पंचाल सर भी हम लोगों के बीच में, डॉक्टर हसमुख भाई हैं, वो और लोकेश भाई दोनों मिलके कहीं ना कहीं इस तरह से एनएसएस के प्रोग्राम और हम लोगों की एक साथ जुड़ के काम करने का जो एक जज्बा है हम लोगों के बीच में, ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज में होता है कि एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेट करके काम करते हैं। और उसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे बॉस बोल सकते हैं एक तरीके से, वो बड़े कोऑपरेटिव है, वो हमको बड़े अच्छे से कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके सामने अभी बात होगी या हो रही है, उसका सारा श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। आपसे इंटरेक्ट करने का मुझे जो मौका दिया उनका भी श्रेय हमारे इन्हीं लोगों को जाता है। इनके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मेन मुद्दा और मकसद जो है वो मेरा तो क्या खून इसी के लिए है, मैंने तो प्रोफेशन ही ये कंप्लीट किया है, मेरी तो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो इस बात का सरकार पैसा देती है, अगर एक डायबिटीज से मरता है तो मेरे जैसे प्रोफेशनल को दुख होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक सिस्टम देश में बनाया 1950 में, 1950 में एक सिस्टम लेके आए। एक व्यक्ति था जो पीएम जोसेफ था, जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से ये विद्या जिसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं लेके आया, ग्वालियर में स्टैब्लिश की, और स्टैब्लिश करने के बाद उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जिस इंस्टीट्यूट ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के रूप में हमारे जैसे प्रोफेशनल स्कॉलर्स निकाले। और जिन स्कॉलर्स की मेन ड्यूटी यही थी, अपने खुद की, परिवार की, आसपास के लोगों की, राज्य की और अपने देश की फिजिकल फिटनेस, मेरे देश के जो युवा हैं उन युवाओं की शारीरिक शक्ति, योग्यता, इनको बढ़ाने का, इसको मेंटेन करने का, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ये फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स को ही है। क्योंकि आप खुद भी देखते हैं, अगर कहीं स्कूल में कोई टीचर है तो एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसको मैथ्स की जवाबदारी है, पर जैसे ही ड्यूटी बदलती है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर आता है तो उसकी यही ड्यूटी हो जाती है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों की, जैसे मैथ्स में सारे बच्चे मैथ्स के टीचर की वजह से मैथ्स में अच्छे हों, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वजह से सभी फिजिकली फिट हों। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने सोच के हर स्कूल में एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया कि प्रिंसिपल हो, मैथ्स का टीचर हो, साइंस का टीचर हो, सोशल साइंस का टीचर हो, तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हो। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मैथ्स है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका फिजिकली फिट होना है। आप खुद अभी देखो कितनी बुरी हालत है कि अमेरिका जैसा देश जो इतना एडवांस है, इतना मॉडर्न है, इतना मतलब उसका आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, पर क्या फिजिकली फिट है? क्या नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति है उसकी भी, और उसकी स्थिति आपने खुद कोरोना में देखी होगी। डेथ का जो रेट है, मरने वालों की जो संख्या है, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो इतना बड़ा एक मजबूत देश एक बीमारी के सामने किस तरह से घुटने के बल आ गया और कैसे उसने लाशों को ढोया है, कैसे लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ अनफिट। एक सिंपल सी टर्म में हम लोग क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर थी, तो वो रिलेटेड है आपकी फिजिकल फिटनेस से। वर्षों से बात की जा रही है भाई, ये लगभग मैं बोल दूं 1978 में यूएनओ ने एक फिजिकल चार्टर, जिसको बोलते हैं
सभी को फिजिकली फिट रखने का एक चार्टर पारित किया, पास किया, जिसके अंदर बोला गया हर इंडिविजुअल के लिए उसका फंडामेंटल राइट है उसे फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करने से कोई रोक नहीं सकता। आप ये सोचिए 78 की बात, 78 में यूएनओ ने ये चार्टर पारित किया और हम लोगों की परिस्थिति इतनी बुरी है। अभी हम थोड़े आंकड़ों पे भी चर्चा करेंगे तो आपको बड़ी गंभीरता का अंदाजा होगा कि अमेरिका जैसे देश के अंदर अभी भी आज के हालात में युवा जो लोग हैं, एडोलसेंट जो लोग हैं, जिनकी आयु 12 से 16 साल होगी, 70% अनफिट हैं। अनफिट का मतलब होता है एक सिंपल सी डेफिनेशन, आप दिन भर अपना काम करें, कोई सा भी काम हो सकता है, आप जो इस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करें, बाहर आए जाएं और रात को सोते समय बड़ा आराम अनुभव करें, मतलब आप फिजिकली फिट हैं। अगर आप सोते समय थोड़ा भी फटीग, थोड़ा भी थाक, थोड़ा भी अनईजी, थोड़ा भी अपने आप को स्वस्थ महसूस ना करें, अनकंफर्टेबल महसूस करें, मतलब यहां कोई परेशानी है। यहां आपके अंदर जो फिजिकली फिट आपकी जो योग्यता होनी थी, जिसको हम लोग शारीरिक योग्यता कहते हैं, वो कहीं कम है। ये हालात अमेरिका के हैं। 60 to 70% युवा लोग अनफिट हैं। अनफिट सिंपल है, आपकी एक टेस्ट में कराऊं जिसको हम आफर्ट टेस्ट कहते हैं, उसमें 7 आइटम्स होती हैं, दौड़ना होता है, भागना होता है, यानी हम लोग फिजिकल फिटनेस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं। इन सब चीजों को अगर मैं अलग अलग टेस्ट से आप लोगों को इवैल्यूएट करूं, मापन करूं, तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हुए कि आपका इतना तो आना चाहिए, इतना नहीं आया मतलब आप पुअर हैं, इतना आ गया मतलब आप गुड हैं, इससे बेहतर आ गया मतलब आप फिजिकली एक्सीलेंट हैं, और बहुत नीचे आया तो हम कह देंगे वेरी पुअर है। तो अमेरिका जैसी कंट्री में जब ये कंडक्ट किया गया तो देखा गया कि यार ये हालात है हमारे देश के। और मैं तो अभी बहुत दूर नहीं जाता हूं, इस कोरोना के कुछ समय पहले मैंने एक रिसर्च के अंदर पढ़ा था कि एक बहुत अच्छा स्टेट है जिसका नाम है केरला, जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब लोग हैं। उस राज्य के अंदर 11th और 12th के लगभग 81 लाख लोगों को फिजिकली टेस्ट किया गया और पता किया गया कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं। आपको बड़ा दुर्भाग्य लगेगा इस देश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वे बहुत कम होते हैं, बहुत कम जगह ये चीजें कंडक्ट हो पाती है। तो ये जो रिजल्ट आया ना, 80% बच्चे ऐसे थे जो अपनी रिक्वायर्ड फिजिकल फिटनेस के नीचे थे। आप सोचिए, एक स्टेट के अंदर एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसके अंदर सबसे अच्छी एज होती है, आप समझो, आप 12th के बाद जब पढ़ रहे हैं उसी के बाद कॉलेज में एंटर करते हैं। आप 13, 14, 15, 16 साल के जब होते हैं, आपका शरीर की फिजिकल एफिशिएंसी सबसे बेटर होती है। आप ओलंपिक्स में देखेंगे ना, तो जिम्नास्टिक के जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो 15, 16, 17 में ही अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं, क्योंकि आपका एक नियम है कि ये शरीर इस समय पे अच्छी परफॉर्म करता है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस अपने आप कम होने लगती है। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ओल्ड एज बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें अपने आप में घेरने लगती हैं, बीमारियां हमारे पर आक्रमण करने लगती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी देश का प्रधानमंत्री 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिन के ऊपर 2019 में आकर उसे ये नहीं बोलना पड़ता कि मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और वो बहुत फिट थे, मेजर ध्यानचंद को डेडिकेटेड करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम फिट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, उस दिन उन्होंने ये कहा कि देश के बच्चों की, देश के युवाओं की, देश के हर एज के लोगों की फिजिकल फिटनेस बहुत कमजोर है। हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए, जिनको हम याद इसलिए करते हैं कि उनका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है और 29 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं खेल दिन के रूप में, रमत दिवस के रूप में। हम 2019 से
एक नया आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं जो स्वच्छ भारत के आंदोलन की तरह होगा, क्योंकि हमारे देश में 2015 से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ स्वच्छ भारत, और आप देख रहे हैं उसके परिणाम। आपका देश बहुत स्वच्छ हो चुका है, आपके रेलवे स्टेशन स्वच्छ हो चुके हैं, आपका हर प्रीमाइसेस आपको स्वच्छ दिख रहा है। एक व्यक्ति के एक आंदोलन की वजह से देश के अंदर एक अलग तरह का चेहरा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें लोग जुड़ते हैं। तो वही उन्होंने 2019 को बोला कि हम एक फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल तर्ज जो रहेगी वो रहेगी स्वच्छ भारत की तरह। हमें अपने देश को भी स्वस्थ बनाना है, हमारे देश के सारे लोगों को भी स्वस्थ बनाना है। हमको फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना है। अब आप सोचो, हमारा देश तो बहुत गरीब है। मालदीव जैसा देश 55,000 रुपए पर ईयर अपने एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पे खर्च करता है, हिंदुस्तान 1,000 रुपए खर्च करता है। छोटी सी कंट्री है मालदीव, हम तो अमेरिका और इनकी सरखामनी नहीं कर सकते। हमारा देश हर साल 10 लाख डायबिटीज से मर जाते हैं, 20 लाख हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, और इनको एनसीडी डिसीज कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेशन डिसीज, बिन संक्रामक रोग। अभी तो हम जो मर रहे हैं संक्रमण की वजह से मर रहे हैं, मगर हम हर साल बिन संक्रमण के रोग, जिन रोगों को हम एनसीडी रोग बोलते हैं, जिसमें स्पेशली 2 बड़े रोग हैं, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट, और हो सकता है कुछ कैंसर के भी पेशेंट, इनकी संख्या ही एक साल में मरने वालों की 20 लाख होती है। और हम चिंता कर रहे थे 2 लाख लोग कोरोना से मर गए, बहुत बड़ी बात, हम उसकी हाय तौबा कर रहे थे। वर्षों से इस देश के अंदर 6.5 से 7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, 15 करोड़ मोटे हैं, और हर साल 20 लाख हृदय की बीमारी से मर रहे हैं, 10 लाख डायबिटीज से मर रहे हैं, 30 लाख का आंकड़ा तो यही हो गया। और हम चिंता कर रहे थे कोरोना में कि कोरोना की वजह से 2 लाख लोग मर गए, जो भी उस समय आंकड़ा था वो बाद में बढ़ा। तो बात ये थी कि ये सारा सिनेरियो प्रधानमंत्री जी देख रहे थे, और इसका कारण यही था कि हमारा देश फिट नहीं था। गौतम बुद्ध भी ये कहते थे कि जब तक आपका शरीर जो है वो हेल्दी और स्वस्थ नहीं होगा, मन की बात ही मत करो। यानी आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकली भी फिट होना और मेंटली भी फिट होना, पर फिजिकली फिट का मेंटल स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, आपकी सोच, आपका थॉट, आपकी काम करने की दृढ़ता, आपका आत्मविश्वास, आपकी हर चीज बेटर होती है, एक नंबर। कारण ये होता है कि आप फिजिकली फिट हैं। पर जो मैं आपके सामने परिदृश्य पेश कर रहा हूं, 34% लोग देश में स्वास्थ्य से पड़ने वाले बोझ के नीचे दब रहे हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि उनके घर में इतने लोग बीमार। 34%, 34%। हम आप युवाओं की बात कर लेते हैं, युवा 40% तो कहीं ना कहीं किसी तरह के एडिक्शन में है। वो हो सकता है मसाला, हो सकता है स्मोकिंग, हो सकती है कुछ और भी हो सकता है। तो जो हम अभी तक बातें करते आ रहे हैं बहुत समय से कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा धन है, तो उस युवा धन का दूसरा भी तो परिप्रेक्ष्य देख लो भाई। युवा धन भले वो 60% आप बोल रहे हो, 45 साल से कम वाले 80% बोल रहे हो, पर क्या वो उतने स्वस्थ हैं क्या? क्या वो इतने अच्छे हैं क्या? और कुछ समय बाद तो आप सोचो कि अपना देश ओल्ड एज वाले लोगों के रूप में पहचाना जाएगा। जब हमारे देश में यंगस्टर इतने सारे हैं और हम लोगों की इतनी विषम परिस्थितियां हैं, तो जिस दिन हमारे देश में सारी की सारी कैटेगरी ओल्ड एज में चली जाएगी, ये तो भाई क्रोनोलॉजी है। आपने जन्म लिया है, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है, अभी आप युवा है, 10, 15, 20 साल बाद जितने ये युवा 35 साल वाले, 25 साल वाले, 20 साल वाले, ये 40 के भी होंगे, 45 के भी होंगे। फिर दुनिया में हमारा देश जो है वो एक ओल्ड एज वृद्धों के देश के रूप में भी जाना जाएगा। तो जब युवाओं के रूप में जाना जाने वाले देश की ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो इतने सारे एडिक्शन में हैं, और अब एक नया एडिक्शन है जिसका नाम है मोबाइल, जिसने आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बंद कर दी है। आप इतने ज्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट में लिप्त हो चुके हैं
कि आपको, मतलब मैं मानता हूं कि ये जनरेशन हिंदुस्तान की हो या वर्ल्ड की हो, कहीं भी हो, वो अभी एक खिलौने से खेल रही है। उसे कोई चिंता नहीं है, उसे सिर्फ चिंता उसके मोबाइल की और 599 के 3 महीने के रिचार्ज की। वो उसका हो जाए, उसकी आगे की नौकरी का क्या है, उसके शिक्षा का क्या है, उसके घर के परिवार के लोगों की उससे अपेक्षा क्या है, ये शायद हम भूल चुके हैं। क्योंकि हम आसपास में ही देख लें, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, आप जो 4-5 बैठे हैं, ये भाई इसको जरा देख ले कि कितनी देर ऑब्जर्व कर, कितनी देर ये मोबाइल का उपयोग करता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई हमारे पास बहुत पैसा तो नहीं है कि हम हर जगह गांव-गांव जिम्नेजियम खोल दें या गांव-गांव हम जाके स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, ये सब स्थितियां नहीं है। पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम स्वयं एक वाहक बन सकते हैं, एक मैसेंजर बन सकते हैं और एक प्रेरणा के कारण बन सकते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को फिजिकली फिट बनाने में, सोसाइटी को फिजिकली फिट बनाने में, अपने राज्य को फिजिकली फिट बनाने में, इस नेशन को, देश को फिट बनाने में कहीं अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने इसीलिए इसको बहुत कुछ नहीं कहा, इसको एक जन आंदोलन कहा। जन आंदोलन आप समझते हैं ना, हम किसी को कह दे भाई तू दौड़ना शुरू कर, तू रोज योग की एक्टिविटी कर, तू कम से कम 40 मिनट्स 45 मिनट्स किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। और ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये तो आजीवन है। आपकी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। कोरोना भी इसी के लिए आया। कोरोना ने आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलने के लिए मजबूर किया। आप खुद याद करिए आपके पिछले 2 साल, क्या आपको चिंता नहीं रहती थी कि आप योग की एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपको चिंता नहीं रहती थी कि आपने प्रॉपर अच्छी डाइट ली है कि नहीं? क्या आपको चिंता नहीं रहती थी कि मैंने थोड़ा दौड़ना भागने का काम कर लिया है कि नहीं? क्योंकि पूरी दुनिया आपको बता रही थी कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है तो आपको अच्छी खुराक लेनी होगी, आपको योग की एक्टिविटी को अपने जीवन में इन्वॉल्व करना होगा, आपको मेडिटेशन को अपनी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना होगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल करना होगा। कुछ भी हो जाए, आप जैसे, मैं हमेशा बोलता हूं, आपको बड़ा अजीब लगता है ना अगर आज नहाए नहीं तो? कैसे ऐसा लगता है आज हमने नहाया नहीं, बात नहीं लिया या टूथपेस्ट नहीं किया, तो हमें लगता है यार आज हमने टूथपेस्ट नहीं किया। आप सोचिए, जो चीज आपने दुनिया में आने के बाद सीखी थी, टूथपेस्ट करना, नहाना, जो आपकी सेकेंडरी सारी एक्टिविटी थी, आपको उसकी चिंता है। पर आपने अपनी मां के गर्भ में सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी किक करके बताई थी, पेट में एक लात मारी थी, तो मां ने बोला था नहीं, मेरे पेट के अंदर एक जीव है और वो जीव की पहली पहचान मूवमेंट है। मूवमेंट आपकी आइडेंटिटी थी, पहचान थी। जन्म लेने के बाद आपने वो आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म कर दी, जिसको हम लोग सेडेंटरी लाइफ बोलते हैं। हम लोग 4 प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं: सेडेंटरी एक्सरसाइज, लो एक्सरसाइज, मीडियम एक्सरसाइज, हाई लेवल की एक्सरसाइज। सेडेंटरी एक्सरसाइज की एक डेफिनेशन होती है, आप उसे कितनी भी देर करें आपको पसीना नहीं आएगा, परसेवा नहीं आएगा। आप कभी मोबाइल पे 1 घंटे तक बैठे रहते, क्या पसीना आया था? क्या आप कभी वीडियो गेम खेलते रहे, 2 घंटे तक बैठे रहे, क्या पसीना आपको आया था कभी? नहीं, क्योंकि ये सारी सेडेंटरी एक्टिविटी है, इसमें मूवमेंट होती है, पर यह मूवमेंट डेंजरस है आपके शरीर के लिए। यह मूवमेंट आपको कहीं भी आपको फिट बनाने में कोई योगदान नहीं देती है। पूरी दुनिया सेडेंटरी लाइफ की तरफ जा रही है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास स्क्रीनिंग घर में देखने के लिए टीवी है। ये सारी चीजें, छोटे बच्चों के पास वीडियो गेम है, ये सारी चीजें उनको सेडेंटरी लाइफ की तरफ ले जा रही हैं, जो आपको आने वाले दिनों में और खतरनाक साबित करेंगी। मोटापा बहुत पुराना बीमारी नहीं है। 81 में लोगों को पता चला था कि कोई एक बीमारी होती है जिसका नाम है ओबेसिटी, जिसको हम लोग मोटापे के रूप में जानते हैं, और ये मोटापा हमारी गलती की वजह से होता है।
लैक ऑफ एक्टिविटी, हमारे जीवन में कम एक्सरसाइज करना और खाने का हमको सही से नॉलेज नहीं होना, फास्ट फूड, ज्यादा कैलोरी वाले फूड, गलत फूड, वेस्टर्न साइड के फूड, इन फूडों का सेवन करना और लैक ऑफ एक्टिविटी, जीवन में हमारे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी का नहीं होना मोटापे के लिए जिम्मेदार था। और मोटापा ही डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है और डायबिटीज ही हृदय की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, जिनकी संख्या आपने देख ली। और हम तो इतने बड़े और अमीर देश में भी नहीं रहते हैं कि जहां पे इस तरह की बीमारी होने पे सरकार हमारी कोई मदद कर सके। हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना हमारे पास एक है, बहुत बड़ा एक हेल्थ का कार्ड है और काम हो रहा है, लेकिन मैं यहां तक मानता हूं अभी कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि अगर आपको हृदय की कोई बीमारी हो और बिल्कुल आप सुबह अच्छा महसूस कर रहे थे और 2-3 घंटे में आपको ऐसा लगा कि बड़ा अनईजी लग रहा है, चलो मैं जाके अपने डॉक्टर्स को बता दूं, अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लूं, और फैमिली डॉक्टर को मिलने के बाद वो एंजियोग्राफी और दूसरे काम करने के बाद आपसे बात नहीं करता था, आपके परिवार से बात करता था और बोलता था कि इनकी बहुत बुरी स्थिति है, इनका एक जो आर्टरी है वो चौक हो गई है, बंद हो गई है, हमें तुरंत इनका हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। अब आप आ जाइए, हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह का करना है। बाईपास करना है, 4-5 लाख लगेंगे, आपको खाली एक अंदर स्टैंड डालना है जिसको एक स्प्रिंग के रूप में होता है, आर्टरी को खोल देता है, ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड से ही हमारा जीवन चलता है। जीवन के लिए ब्लड ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तुम्हारा सूर्य में से मिलने वाला, भोजन में मिलने वाली एनर्जी को भी शरीर में रोटेट करता है और वातावरण में मिलने वाली ऑक्सीजन को भी शरीर में घुमाने का काम करता है। हर सेल की प्राइमरी रिक्वायरमेंट 2 ही चीज है, भोजन और ऑक्सीजन। इसको घुमाने और फेरने का काम, रोटेट करने का काम हृदय करता है। और जब भी कोई आर्टरी बंद हो जाती है ज्यादा फैट खा के या बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण, यह समस्या आपके सामने उत्पन्न हो जाती है। और कारण इसका सिर्फ इतना ही, लैक ऑफ एक्टिविटी। आपके जीवन में एक्टिविटी कम कर देना, भोजन ऐसा लेना जितनी कैलोरी जरूर रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट की कैलोरी ले लेना, और इसको, इस अनबैलेंस को, ये जो बैलेंस जब टूटता है तो ये हमारे सामने जो है इस तरह की फिजिकली फिटनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक देश के इतने बड़े मतलब बड़े इतना संख्या वाला देश है, उसके एक प्राइम मिनिस्टर को आके कहना पड़ता है कि हमें एक जन आंदोलन छेड़ना होगा, हमें एक ऐसा आंदोलन छेड़ना होगा जिसमें कुछ भी नहीं करना है। किरण रिजिजू जी उस समय का खेल मंत्री सिर्फ इतना सा कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना। फिट इंडिया मूवमेंट मतलब आपके जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना। डिसिप्लिन का मतलब है समय से उठ जाना, रोज 45 मिनट से 1 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना, भोजन का थोड़ा सा कंट्रोल करना, और इस डिसिप्लिन के साथ आपको अपना जीवन जीना, मतलब आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। इसी मैसेज को हमें और लोगों तक फैलाना और लोगों को इसके अंदर आंदोलन में शामिल करना। और धीरे धीरे जो स्थिति हमको दिख रही, जो हमने केरला में देखी, 80% बच्चे फिजिकली अनफिट थे, दिल्ली में 50% लोग ओबेसिटी के अंदर हैं, गुजरात के अंदर 17 से 20% लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। गुजरात में अभी आंकड़े निकले थे, हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। आप वो सोचिए, आप जरा आज इस पे गंभीरता से जरा विचार तो करिए कि गुजरात में हमारे यहाँ हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए सिर्फ जिम्मेदार कौन है? फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज, हृदय की बीमारी। जो आपकी दिनचर्या को आप नहीं बदल पाए, आपने अपनी दिनचर्या को जो है अपनी रेगुलर जो दिन आप बिताते हो उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफ आपने बना ली है, सेडेंटरी एक्सरसाइजों को इन्वॉल्व कर लिया है, इस वजह से आपको ये सब दिन जो है देखने पड़ रहे हैं। और इसकी विषम परिस्थिति और आएगी तो खतरनाक। डायबिटीज जो है वो हब बोला जा रहा है, कैपिटल बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है वो अभी भी कैपिटल है और आने वाले दिनों में और कैपिटल होगा। हर 6ठा या 7वां व्यक्ति दुनिया में अगर डायबिटिक होगा तो वो इंडियन होगा। कारण क्या है? सिर्फ इतना सा कारण है कि हम लोगों ने अपने जीवन में से फिजिकल एक्टिविटी को निकाल दिया, हमने फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ दिया है।
जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी, हमारी पहचान थी, उस पहचान को हमने छोड़ दिया। मैं तो ऐसा भी सोचता हूं कि जिन जिन पहचानों को लोगों ने छोड़ा है वो तो हमेशा साफ हो गई हैं, वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में जब हमें पता है, अरे आप तो आपके आर्थिक जो है ना वो भी बढ़ा सकते हैं। लैंसेट जर्नल आपको बताता है कि हिंदुस्तान के युवा धन की अगर फिजिकल एफिशिएंसी का पूरा पूरा उपयोग किया जाए तो हमारी जीडीपी 1.4% बढ़ सकती है। कैसे? पीक प्रोडक्टिविटी। हमारी जो पीक प्रोडक्टिविटी है वो खाली 6.5 साल है भाई। हम जीते हो भले 72 साल, पर हम सबसे ज्यादा अधिकतम शक्ति और क्षमता के साथ काम करते हैं ना सिर्फ 6.5 साल। इंडियन जो जिनकी पीक प्रोडक्टिविटी सिर्फ 6.5 साल है, चाइना की 20 साल है, हमसे ज्यादा श्रीलंका के लोगों की 16 साल है, उससे भी ज्यादा भूटान वाले लोगों की है, नेपाल के लोगों की है, हमारी सिर्फ 6.5 साल है। आप सोचिए, आप 72 साल जीते हैं और आप पीक परफॉर्मेंस अपनी अधिकतम शक्ति और दक्षता के साथ काम सिर्फ 6.5 साल करते हैं। अगर ये पीक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, और पीक प्रोडक्टिविटी सिर्फ आपकी फिजिकली फिट होने से बढ़ेगी, आप सोचें किसी और चीज से बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप फिट नहीं है भाई, आपको सरकार ने टैक्स पे के रूप में एक नौकरी दी और आपको काम करने के लिए बोला गया 7 घंटे, आपको इंजीनियर का काम दिया गया, साइट पे जाना है, दूसरा काम करना, और आप उस काम को नहीं कर पाते, मतलब आप तो फिट नहीं है। तो ये परिस्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है। हम लोगों की जो पीक प्रोडक्टिविटी है वो खाली 6.5 साल है। चाइना हमसे 3 गुना आगे है, संख्या में भी ज्यादा है, और वो उनके लोग इतने फिट हैं कम से कम कि वो अधिकतम दक्षता के साथ 20 साल तक काम करते हैं। एक हेल्थ का सर्वे है जिसको हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं। 191 देश, 191 देशों में जब ये देखा जाता है ना कि कौन कौन देश फिजिकली फिट है, हमारा नंबर 120वां है भाई। हम 120वें नंबर पे आते हैं। हमसे ज्यादा फिजिकली फिट ही हमारा पड़ोस में रहता श्रीलंका है, हमारे पड़ोस में रहता भूटान है, हमारे पड़ोस में रहता नेपाल है, और स्पेन और इटली तो 1 नंबर है। देश का सबसे फिट लोगों का रहने वाला जो फिटनेस इंडेक्स में नंबर 1 है वो स्पेन है, सेकंड इटली है। तो जिन देशों, और हमारी कौन सी स्थिति है? 120, 120वें पायदान पे हम लोग। तभी तो हम लोग को चिंता है, तभी तो प्रधानमंत्री को चिंता है कि हमारे पास युवा तो है पर युवा फिट नहीं है। युवा का नंबर 120वां है। अगर ये 120वें से पहले नंबर पे पहले 10 में आ जाएंगे तो कितना देश के लिए काम कर सकते हैं, कितना देश के लिए फिजिकल एफिशिएंसी का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा अच्छे हेल्दी होंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा जीएसटी और सीएसटी पे करेंगे। जब ज्यादा जीएसटी और सीएसटी पे करेंगे, आपकी जो जीडीपी है ऊंची चली जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपकी इकोनॉमी के साथ भी संबंध रखता है। आपका हेल्थ आपके देश का एक बहुत बड़ा धन है जिसका उपयोग देश के डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है, देश के विकास के लिए किया जा सकता है। एक और हम जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। कायदे से दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल हिंदुस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या है चाइना के बाद, और सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसका नंबर भी 159 है, 159। दुनिया के लोगों में सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल जनसंख्या हमारी है, पर जब उस कैपिटल का उपयोग की बात आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 18 to 64 ईयर के लोगों के द्वारा किया जाने वाला काम, जिसको ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया जाता है, जब इस ह्यूमन कैपिटल का नंबर लगाया जाता है तो हमारा नंबर आता है 159। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि हमारे पास यंगस्टर्स हैं, हमारे पास युवा सबसे ज्यादा हैं, पर ना तो वो फिजिकली फिट हैं, ना ही वो ह्यूमन कैपिटल के दृष्टिकोण से फिट हैं, ना ही वो पीक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बड़ी कंप्लीट है या वो परिपूर्ण है।
या वो हेल्थ के हिसाब से परिपूर्ण है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा ही चिंता होती है। वैसे ही प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई कि अगर मैं इस तरह का कोई एक आंदोलन छेड़ दूं जिस आंदोलन से आपके मन में ये फीलिंग पैदा हो जाए कि यार नहीं, मैं अगर अपने जीवन में दौड़ना, भागना, चलना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मूवमेंट मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी में नंबर 1 है, अगर वो मैं लाइफ स्टाइल में डाल दूं। देखो गांधी उससे आगे था। तुम तो कितने किस्मत वाले हो मेरे बच्चों कि तुम इस गांधी की संस्था में पढ़ रहे हो, जो 100 साल पहले सिस्टम बनाते समय जात मेहनत की बात करता है। आप सोचो, जात मेहनत का मतलब वही है कि आप अपने काम स्वयं कर लें, आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कितना आजकल कैसा स्टाइल है कि एक व्यक्ति घर से निकलता है 4 व्हीलर में, 15 किलोमीटर पेट्रोल जला के वो वहां पे गाड़ी को पार्क करता है और पार्क करके उस जिम के अंदर पेमेंट देता है, बिजली के ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ता है, यानी वो बिजली जलाता है उतनी, उस चीज के ऊपर इतना खर्च करता है, एक और प्राकृतिक चीज जिसको पेट्रोल बोलते हैं या डीजल बोलते हैं उसका वपराश करता है और फिर जाके अपने आप को फिजिकली फिट बनाता है। पर गांधी क्या कहता है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जात मेहनत, आप अपने छोटे छोटे से काम स्वयं कर ले जो उनकी सिस्टम में है, जिसके लिए विद्यापीठ पहचानी जाती है कि आप सुबह जाके थोड़ी सी सब्जी काट लेते हैं, या आप अपने कपड़े धो लेते हैं, या आप अपना वॉकिंग करके एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं, यही बहुत काफी है। आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। गांधी संस्थान में मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पोर्ट्स की कोई बहुत जरूरत है, क्योंकि गांधी ने आपको वंशज के रूप में, हेरिडिटी में दिया है। गांधी ने आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है जिस सिस्टम में ये बात की गई कि अपने आसपास की थोड़ी सी सफाई कर लो भाई, अपने कपड़े खुद धो लो भाई, अपना काम कमरा खुद साफ कर लो भाई, तो आपको कुछ भी नहीं लगा, आपकी फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव हो गई और आपका काम करने पे जो खर्च आने वाला था, हो सकता है कि आप किसी वर्कर को बुलाते कि भाई ये सफाई कर दे, ये इसके लिए कर दे, ये कर दे, और सबके लिए आपको एक खर्च करना पड़ता। जैसे वो भाई गया था बेचारा कि पेट्रोल जला के इतनी दूर गया, फिर उसने जिम वाले को भी पैसे दिए, बिजली भी जो हमारी खुद की नहीं है, कोयला क्या हमारा है क्या? सबसे ज्यादा तो गांधी ने हमको ही समझाया कि ये तो पर्यावरण, ये तो सबका है, नेचर से मिलने वाली हर चीज पे नेचर के रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है, आप कोई ज्यादा नहीं ले सकते। पैसा ज्यादा है तो क्या आप लाइट ज्यादा जलाएंगे क्या? नहीं। पानी भी ज्यादा नहीं लेंगे। तो वो सारी चीजों को बैलेंस करने का काम गांधी से श्रेष्ठ कोई नहीं जानता, गांधी से श्रेष्ठ कोई कह नहीं सकता। हम तो सारे के सारे जो हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, गांधी के बताए मार्ग को अगर सिर्फ चलते रहेंगे ना, तो फिटनेस के किसी मूवमेंट की गांधी सिस्टम में रहने वाले व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं। आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, जो बहुत अच्छे से फॉलोअर होते हैं गांधी के, आपने उनको कभी अनफिट और कभी इस तरह की स्थिति में नहीं देखा होगा। तो हमको तो हमारे सिस्टम में इतनी अच्छी चीज मिली है, उसके बाद भी अगर हमको जिम्नेजियम हॉल मिलता है, हमको मल्टी जिम मिलता है, हमको ग्राउंड्स मिलते हैं, हमको अच्छी खुराक मिलती है, तो हमें उसकी आदत डालनी चाहिए। तुम समझो, टेव इज इंपॉर्टेंट, आदत। ये आदत आपको अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, जिस सिस्टम में आप बड़ा सादगीपूर्ण रहते हैं, बड़ा सादगीपूर्ण का भोजन लेते हैं, बड़ी सादगीपूर्ण की स्टाइल में अपना जीवन जीते हैं, ये जीवन आपको बहुत लंबी और अच्छी आयुष्य देने वाला है, आपको बहुत बेस्ट बनाने वाला है, बहुत श्रेष्ठ बनाने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना फिट इंडिया मूवमेंट के तहत है, वो साबित हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं मेरे जो बच्चे हैं वो सब गांव से आते हैं, अधिकतर विलेजर्स। वो खुद इतनी मेहनत करते हैं अपने खेतों में, वो खुद अपना इतना काम करते हैं, उनको तो पैतृक मिला हुआ है सारा, उनके मदर फादर ने उनको सिखाया है, उनको कहीं फिट होने की जरूरत नहीं है। ये तो वहां जरूरत है, जैसे अहमदाबाद का कोई पब्लिक स्कूल में मैं जाऊं जहां पे बेचारा 15 साल का बच्चा बीपी से पीड़ित है, जिसको 15 साल के बच्चे को
वजन होना था 50 से 55 किलो और उसका वजन 100 किलो। वहां ये सब भाषण की जरूरत है, वहां ये सब बताने की मुझे जरूरत है कि कितना क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, हमें कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी करना, कितना इंपॉर्टेंट है हमें भोजन का सही रूप में ग्रहण करना, जिससे हम लोग अपने आप को हेल्दी बना सकें। अरे आप देखो ना, अभी आप कल्पना करो आपके आसपास कितने लोग फिट हैं। आपने उनको याद करो, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। तो अगर आप धर्म मानोगे ना, अगर फिटनेस को, तो आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, क्योंकि मेजोरिटी में अनफिट लोग हैं। आप माइनॉरिटी में, फिट लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हो सकता है मिलिंद सोमन जैसा आदमी, जिसकी मां 80 साल की उम्र में एक यंगस्टर से ज्यादा सिटअप्स और पुशअप्स करती है, जिसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट फिट इंडिया के मूवमेंट के दिन लाइव टॉक करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं कि मिलिंद, तेरी मां जो 80 इयर्स की है, आज भी एक यंगस्टर से ज्यादा पुशअप्स और सिटअप्स लगाती है। क्योंकि मिलिंद ने खुद बोला, किसी जिम में जाने से फिजिकल फिटनेस नहीं आती, फिजिकल फिटनेस अपनी लाइफ के अंदर बदलाव से आती है, चेंज से आती है। सुबह उठ के वॉक, रनिंग, कोई एक्टिविटी से आती है, अपने जीवन में बदलाव करने से, परिवर्तन करने से आती है, किसी जिम में जाने से नहीं आती। मिलिंद कभी किसी जिम में नहीं गया, पर आज मिलिंद की जो उम्र है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने टैग किया कि आप देखो मिलिंद को, उसके जैसी फिजिकल फिटनेस बनाओ। उन्होंने याद किया मेजर ध्यानचंद। आपको पता है मेजर ध्यानचंद का नाम चंद तो था ही नहीं, मेजर ध्यान ही था खाली। रात को 3 बजे चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जर्मनी में जाके गोलों की बरसात हॉकी में कर दे और इतना फिट हो, जो अपने मरते दम तक फिट रहा हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने उसके जन्मदिन को याद किया और उस मेजर ध्यानचंद की फिजिकल फिटनेस को आपको सौंपा कि उसकी जैसी फिजिकल फिटनेस आप बनाओ, जो रात को, क्योंकि उनको तो बावर्ची का काम था भाई, वो तो 5 बजे से उठ के सेना के लोगों का खाना बनाने का काम दिया गया था। अगर वो आदमी अपने शेड्यूल को चेंज नहीं करता, 5 बजे उठ के उसकी रेगुलर एक्टिविटी रोज के खाना बनाने की, रसोड़े की थी, तो अगर वो 3 बजे उठ के चांद की रोशनी में प्रैक्टिस नहीं करता तो चांद नाम भी नहीं मिलता। और जर्मनी का तानाशाह उसे ये भी नहीं बोलता कि तू मेरे देश के लिए आजा, मैं देश की सबसे बड़ी डिफेंस की पोस्ट तुझे दे दूंगा। मगर उसकी राष्ट्रीयता देखो, उनकी राष्ट्रभक्ति देखो मेजर ध्यानचंद की, वो ठुकरा दिया उन्होंने और हिंदुस्तान के लिए काम किया। और हिंदुस्तान के लोगों को फिट बनाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, प्रधानमंत्री ने 2019 में उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश की। मुझे लगता समय अपनी मर्यादाओं से आगे बढ़ता जा रहा। मुझे 30 मिनट का अवसर दिया गया था, मेरे हिसाब से 30 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है। मेरा सिर्फ इतना ही आपके लिए संकल्प है, आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप जो है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं छोड़ेंगे। जब भी आपका दिन पूरा हो, आपको रात को सोते समय आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद की अनुभूति अगर नहीं हो रही, आपको आनंद फील नहीं हो रहा, मतलब देयर इज सम लैक्स, यहाँ पर कोई कमी है, आपकी फिटनेस पुअर है, आप हेल्दी नहीं हैं, आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं। धीरे धीरे ये बीमारी बहुत बड़े ब्रॉड रूप में चली जाएगी और तब हमारे पास समय नहीं रहेगा पाल बांधने का। तब फिर हार्ट सर्जरी होगी, पूरे समय के लिए डॉक्टर कह देगा कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब मिलके विद्यापीठ के गांधी के सिस्टम को ही आगे बढ़ा देंगे, तो हमारे आसपास का वातावरण फिजिकली फिट हो जाएगा। और हम संकल्प लें कि हमारी लाइफ में 45 मिनट और से लेके 2 घंटे 1 घंटे तक की फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य रूप से होगी। कोरोना हमेशा अभिशाप और वरदान, अभिशाप ये था लाखों लोग मरे, वरदान ये है कि उसने लाइफ स्टाइल बदलने के लिए आप लोगों को मजबूर कर दिया। और जो अभी भी नहीं मानेंगे वो फिर तैयार रहें हृदय का ऑपरेशन कराने के लिए, स्टैंड डलवाने के लिए और लैक ऑफ एक्टिविटी, बगैर एंजॉय के जीवन जीने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं फिर से आभार मानता हूँ मेरे भाई, दोनों भाई हैं मेरे सामने, लोकेश भाई का और हसमुख भाई का, कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से इंटरेक्ट होने की। और मैं बोल देता हूँ, हर बार बोलता हूँ
कि जिस देश में ज्ञान की इतनी गंगा बह रही हो कि सुबह 25 चैनल खोलो तो 50 बाबा आपको दिखेंगे ज्ञान बांटते हुए, और वो ज्ञान के समय में आप लोग थूक रहे होते हो ब्रश करके वॉश बेसिन में। जिस देश में ज्ञान की इतनी बुरी दुर्दशा हो, तुम जो बच्चे बेचारे इतने दृढ़ता के साथ मुझे सुन रहे हो, इतनी देर तक सुना, मैं आप लोगों का बहुत दिल से यहाँ धन्यवाद देता हूँ। जहां कोई किसी की सुन नहीं रहा है, आप इतनी देर से मेरी बात सुन रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कार्यक्रम था। जो भी हमने बातें की प्लीज अपने जीवन में उतारना, उनको आगे बढ़ाना। हमको अपने आप को, अपने आसपास को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राज्य को फिट बनाना है। इसी संकल्प के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। इतना धारा प्रवाह में चले तो समय से काफी आगे निकल के, वैसे भी आगे ही हो समय से यार। काफी पहलुओं को आपने साथ में रख करके चले हो, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति को, एकदम फिट व्यक्ति को हमने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए चुना आज बात करने के लिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था कि जो अपने जुस्से के साथ और जो इसके लिए ही जीता हो, उसके ज्ञान की बात तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो इसके लिए ही जीता है अपनी बात को अंदर से जब कहने की बात आती है, दिल से कहने की बात, वो शायद नीरज ने कर दी है। तो नीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने साथी हसमुख भाई पटेल से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की समीक्षा के रूप में आभार वचन भी कहें आदरणीय हसमुख भाई। हसमुख भाई आपका माइक बंद है। અવાજ આવે છે? अब હવે આવે છે। બિલકુલ। આજે आजादी का अमृत महोत्सव के 5 प्रकल्प के अंतर्गत खूब ज महत्वना एवं विषय फिट इंडिया मुहिम युवा शक्ति के निर्माण की आधारशिला में आज खूब ज महत्वनी बात करता मुख्य वक्ता नीरज भाई, संस्थाना संयोजक श्री राजीव भाई, राष्ट्रीय सेवा योजना संयोजक श्री अरुण भाई, लोकेश भाई, तमाम अध्यापक मित्रों और वाला विद्यार्थी भाई बहनों, સૌથી પહેલા તો રાજીવભાઈનો આભાર માનીએ છીએ કે આવા કાર્યક્રમો કરવા માટે આપણને એક અલગ પ્રકારની શક્તિ આપે છે, અને એ બહુ જ સહેલું કહે છે કે પહેલું સુખ છે જાતે ન રહ્યા, પણ અમે એવું પણ માનીએ છીએ કે આ સુખની સાથે સૌને લઈને ચાલવું ને એ બહુ જ મોટી સુખની નિશાની છે। અરુણભાઈએ પણ આજે બહુ સરસ વાત કરી કે આ બધું જ તો છે, પણ જ્યારે આપણે આરોગ્યનું ઇન્ડેક્સ જોઈએ છે ત્યારે ચિંતા થાય છે। અરુણભાઈનો આભાર કે આવા ઇન્ડેક્સ જોઈને પણ આપણને આરોગ્યની દિશામાં એક નવી દિશા બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે યુવાનોને। હંમેશા એમની આ મહત્વની ભૂમિકા, એનો આભાર માનવો જરૂરી છે। નીરજભાઈને સાંભળવા ખૂબ ગમે અને ખૂબ લાંબા સમય સુધી અગર એમને બોલવાનું કહેવામાં આવે તો આવી જ સ્ફૂર્તિથી અને આવા જ ખુશ મિજાજથી વાતો કરતા મેં જોયા છે એમને। દોસ્તો, આ ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ જે જન આંદોલન બનાવ્યું છે, ખરેખર તો વિદ્યાપીઠમાં દરેક વિદ્યાર્થી ફિટ છે, પણ થોડીક મુશ્કેલી એ દિશામાં પણ છે કે તમે આ રાંધેજા, સાદરા કે અમદાવાદ જેવા મોટા પ્રિમાઇસીસના મેદાનોનો ઉપયોગ કરતા થાવ એવી પ્રેરણા એમણે આપી છે। પ્રાર્થનામાં પણ જો આપણે ઝોકા ખાઈએ એના કરતાં યોગ્ય વ્યાયામ કરીને પ્રાર્થનામાં પહોંચીએ એટલા ફિટ થવા બહુ જરૂરી છે। નીરજભાઈએ ઘણા બધા પ્રવાહો આપણને બતાવ્યા છે અને એ દિશામાં આપણે ચાલીશું એવી આશા અને આપ સૌનો એવો વિશ્વાસ હું નીરજભાઈને આપું છું। નીરજભાઈએ વાત કરી છે એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું છે મારા સાથી મિત્ર લોકેશભાઈનો આભાર, અને તમામ યુવા મિત્રોને ખાસ આભાર નહીં પણ આવકાર એટલા માટે કે આ મૂવમેન્ટમાં આપને ઉપસ્થિત રહેવાનું છે, આપની જાત સાથે સંકલ્પ કરીને। બીજા કોઈની સાથે સ્પર્ધા નથી, માત્ર ને માત્ર તમે તમારી જાત સાથે જોડાવા માટેનો આ પ્રયાસ છે। તો આ પ્રયાસમાં
તમે એક મહત્વનો સંકલ્પ કરી તમારી જાતને ફિટ બનાવવા માટેનો ચોક્કસથી પ્રયાસ કરો એવી ભાવના સાથે સૌનો ફરીથી આભાર માનું છું. તમામ કાર્યક્રમને સમગ્ર રીતે સફળ બનાવવા માટે સૌનો આભાર. ઓવર ટુ લોકેશભાઈ. धन्यवाद श्लोक भाई. नीरज भाई, दो लाइन आपके लिए कहने का मन हुआ बीच में, या तो आभार के बाद कुछ नहीं कहना चाहिए. लोग ये कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, पर मुझे एक है ना, एक व्यक्ति की दो लाइनें याद आई. अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर न भीख मांगे कफन की, अभी अपने घर में फसाने बहुत हैं. तो नीरज भाई हमारे घर के ऐसे ही वो फसाने हैं जो हमें हर समय उपलब्ध रहते हैं. बाहर वालों के तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अपने लिए तो अपने ही हैं. तो नीरज भाई आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच में रहे और एक मित्र की तरह से, भाई के तरीके से आपने जिस तरह से अपना योगदान दिया, विभाग की तरफ से, हमारे परिसर की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार. और हम आज इस कार्यक्रम को यही पूरा करते हैं. अशोक भाई धन्यवाद. ધન્યવાદ ओके सर. सर આભાર સાથે धन्यवाद.